ٹھیک ہے, ہم پڑھ رہے ہیں صفات لازمہ متضادہ, اپوزٹ بھی ان کی صفات ہیں. پہلے جیسے آپ نے ہمس پڑھی ہے, اب اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ جہر ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ جہر ہے, جیم ہا را کے ساتھ. اب دیکھیں کہ جہر کا معنی کیا ہے؟ بلندی کا ہے, بلند ہونا, اونچا مقام. جیسے آپ اوپر کسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں یا چھت کے اوپر کھڑے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بلند, اونچا, ہائی. تو ہمس کیا تھا؟ ہمس اس کے اپوزٹ ہے. ہمس کیا ہے؟ ویکنیس, کمزوری کے ہے, پستی کے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ بلندی کے, اونچائی کے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اب جہر کیا ہے؟ literally means to be apparent, یعنی اس کا ظاہر ہونا, اپیئر ہونا. اور ٹیکنیکلی means the discontinuation. اس میں کیا تھا؟ کنٹینیوشن. جو ہمس ہے اس میں کیا تھا؟ کنٹینیوشن. آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے سانس کو. اس میں کیا ہے؟ ڈسکنٹینیوشن آف دا بریتھ when pronouncing the letter due to strength. اس میں strength پائی جاتی ہے, اس میں کیا تھا؟ weakness تھی. due to strength in its origin, causing it to rely greatly on its makharij. The rest of the letters have this quality. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دو چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں, اس کے اپوزٹ ہے, ہمس کے بالکل اپوزٹ ہے. ہمس میں کیا تھا کہ آپ نے آپ کی آواز کو پست رکھنا ہے, ویک ہونا ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ کنٹینیو کرنا ہے, آپ کا جو سانس ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اس میں کیا ہے؟ سانس کو روکنا ہے, ڈسکنٹینیوشن, سانس کو روکنا ہے. جب آپ نے لیٹر کو اس کی اسٹرینتھ کی وجہ سے, اس کی بلندی کی وجہ سے, اس کو اسٹرونگنس کی وجہ سے جب لیٹر پرناؤنس کرنا ہے اس کے مخرج سے, تب آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے, اونچا کرنا ہے. اب اس میں یاد رکھیں کہ جو لیٹرز ہیں وہ اس کے لیٹرز اور جو جہر کے لیٹر, جو ہمس کے لیٹرز ہیں وہ اپوزٹ ہیں. اب جہر کا لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی جہر کا لغوی معنی کیا تھا؟ بلند, ہائی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا, قوت کی وجہ سے, اس کے اسٹرونگنس ہونے کی وجہ سے, ہیوی ہونے کی وجہ, قوت کی وجہ سے آواز کا ہائی ہونا یا بلند ہونا. اب جہر کی صفت کیا ہے؟ جہر کی صفت یعنی حروف محموسہ کو چھوڑ کر باقی 19 میں پائی جاتی ہے. پلیز آپ میوٹ کر لیں. جہر کی صفت حروف محموسہ کو چھوڑ کر, آپ نے ہمس کے لیٹرز پڑھے 10 لیٹرز چھوڑ کر باقی اگر آپ کاؤنٹ کریں 19, اور سب 19 جتنے بھی لیٹرز بچیں گے وہ جہر کے ہوں گے. سمجھ آئیے؟ 10 لیٹرز محموسہ کے ہم نے چھوڑنے ہیں. کون سے ہیں؟ آپ میوٹ ہی رکھیں لیکن آپ ریپیٹ کریں میرے ساتھ. محموسہ کے لیٹرز تھے فا, حسہ, شخص, سکت. فا, ہا, سا, ہا. اس کے بعد شخص میں شین, خا, صاد, اور اس کے بعد سکت, سین, کاف, تا. 10 لیٹر چھوڑ کر باقی جو 29 لیٹرز ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الف, با, جیم, دال, ذال, را, زا, ضاد, قا, ظا, عین, غین, قاف, لام, میم, نون, واو, حمزہ, یا. اس کو کچھ بھی یاد کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے ورڈ کہ اس کو یاد رکھیں, لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 10 اگر آپ نے محموسہ کے یاد کر لیے پھر آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے ریسٹ لیٹرز نکال لینے ہیں, محموسہ کے نکال کے باقی جہر کے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے. جب آپ نے ان کو پروناؤنس کرنا ہے تو اس کا مخرج کی جو آواز ہے, جو اوریجن سے جب آپ نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سٹرونگ ہوتی ہے اور سانس جاری نہیں رہتا, سانس جاری نہیں رہتا اور آواز میں بلندی ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیں. ایک تو سانس جاری نہیں رہتا, سانس آپ نے بالکل وہاں پہ روک لینا ہے.
दूसरा क्या है, आवाज कुव्वत से ठहरती आवाज, आप देखेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्गनेस पाया जाएगा, कुव्वत होगी, और हैवी वो होगा, यानी बुलंद होगा, आपके आवाज उसमें मोटी होगी। जी, अब इसमें जैसा कि आप एक्सरसाइज करें, अगर इनकी आप देखते हैं तो इसकी देखें कि बिल गैबी, आपने मजहूरा का लेटर में एक पढ़ा था, हमजा है, बा है, अब इसमें क्या है, सॉरी अलिफ और बा। अब देखें कि बिल, बी 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 बिल, अगर आप बा को देख रहे हैं तो बी 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 और बा बा बा। अब देखें कि आवाज जब आप बा कहते हैं ना, अब आपकी आवाज हाई हो रही है, बा बा बा। बिल गैबी, बिल गैबी। इसी तरह से जा जा जाला, जा, एक तो स्ट्रॉन्ग है जा जा। आप देखें कि इसके ऑपोजिट क्या था, आपने पढ़ा फहसाहु, हा आपने पढ़ा, उसमें क्या था, हा हा हा। अगर आप उसको जब आप स्टॉप करते हैं ना तब वो ज्यादा फील होता है, आह, वो वीक है। इसके मुकाबले में अगर आप इसको कसरा भी देते हैं तो वो क्या होगा, अज, अज हैवी है, अज अज स्ट्रॉन्ग है। और आपका आवाज जो है आपका ज ज ज, आपका अगर आप अपना जो सांस है उसको आपने तोड़ना, इसमें क्या था, अपने सांस को आपने कंटिन्यू नहीं रखना, तो ये क्या होगा, जा जाला। अगर आप कंटिन्यू रखते हैं फिर कैसे होगा, फिर आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अगर कंटिन्यू रखते हैं सांस को, फिर क्या होगा, ज ज ज, अब सांस आपका बाहर आएगा, फिर जा जा, लेकिन आपने इसको स्ट्रेच नहीं करना, ये क्या है, जाला, जा 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 जा। अब देखिए द द द, दाल फतहा, दाखला द। एक तो आप जब द कह रहे हैं आपकी आवाज जो है वो स्ट्रॉन्ग और हाई हो रही है, द द। दूसरा आप आवाज अपना सांस भी तोड़ेंगे, द, आपको कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है, द द द। रॉ, इसी तरह रब्बिल आलमीन, रॉ 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 हैवी है, यानी इसका मतलब यहाँ पे हाई है, रॉ की जो साउंड है वो है रॉ, रॉ हैवी है यानी हाई है इसकी साउंड, और आपने आवाज जो सांस है वो भी तोड़ना है, कंटिन्यू अपनी एयर जो फ्लो है उसको कंटिन्यू नहीं रखना। अगर इसको कंटिन्यू रखे तो क्या होगा, रॉबिल 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 रॉबिल, तो लेकिन ये क्या है, रॉबिल रॉबिल। जी आप बताएं कि किसको समझ आई है या नहीं आई। जी जी उस्तादा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, आगे समझ। जी बाकी याद ये रखना है कि ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिफाते लाजिमा मुतजादा पढ़ रहे हैं, ऑपोजिट पढ़ रहे हैं, एक यानी दोनों दूसरे के खिलाफ होगी, एक सिर्फ अगर स्माइल करना है तो दूसरी क्या है, सैड होगी। तो इसी तरह से अगर एक को आपने लाइट पढ़ना है तो दूसरी उसके ऑपोजिट हैवी होगी, ये याद रखना है। पहले थी हम्स में, उसकी क्वालिटी क्या है, हम्स जो होता है वो लाइट, उसमें वीकनेस पाई जाती है उस लेटर में, ये इसके ऑपोजिट है, इसमें वीकनेस नहीं है बल्कि ये स्ट्रांग होता है, हाई इसकी साउंड होती है, इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा सा लेटर को हैवी करके प्रोनाउंस करते हैं, और इसमें सांस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता, जबकि हम्स में सांस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं इसमें। उसके बाद है जी नंबर 3 है शिद्दा। अब शिद्दा क्या है, शिद्दा के मतलब है स्ट्रेंथ के, लिटरली मीन्स स्ट्रेंथ, और इसके इस्तिलाही या टेक्निकली मीन्स क्या है, द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द साउंड,
डिसकंटिन्यूएशन, इसमें भी क्या होगा, आपका सांस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा. while pronouncing the letter causing it to rely greatly on its makharij. इसमें भी क्या होगा कि आवाज आपकी यानी आपका जो सांस है वो कंटिन्यू नहीं होगा जब आपने लेटर को प्रोनाउंस करना है, और इसको आपने मजबूती से या स्ट्रेंथ या सख्ती से पढ़ना है. अब इसको देखते हैं. सिफ्त शिद्दत, इसका जो शिद्दत है इसका मतलब क्या है, कुव्वत की वजह से आवाज का सख्त होना. कुव्वत की वजह से आवाज का सख्त होना. और हरूफ शिद्दा कितने हैं, 8 हैं. हरूफ शिद्दा 8 हैं. अब आपने अगर कलकला लेटर्स अगर आपको सबको आते हैं, कुतुब जद्दिन, कौफ तो बा जीम दाल, तो वो हम अलग कर लेते हैं. कुतुब जद्दिन, कौफ तो बा जीम दाल. और बाकी 2-3 लेटर बचते हैं, एक हमजा है और काफ और ता है. तो ये टोटल देखें कितने हैं, 5, 6, 7, 8. ये टोटल 8 लेटर हैं. 5 कलकला लेटर्स और बाकी रेस्ट जो है वो 3 हमजा, काफ एंड ता. हमजा, काफ एंड ता. टोटल कितने हैं, 8 हैं. अब इसमें इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इन हरूफ को अदा करते वक्त उनके मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती है और सख्त हो जाती है. जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है, उसका जो ओरिजिन है, उसका मखरज है, उसकी आवाज कुव्वत से स्ट्रांगली आप फील करते हैं और सख्त हो जाती है. अब इसमें 5 लेटर्स कलकला के, बाकी 3 जो है वो इसके ऑपोजिट कह लें, ये टोटल 8 हैं. अब इसकी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो क्या होगा, पहले इसमें अगर आप देखते हैं हमजा को लेते हैं. फर्स्ट लेटर क्या है, हमजा. इससे पहले बा फतहा हमजा सुकून, तो क्या होगा, बा 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 बा. इसको आपने झटका देना है, बा. अब आ की साउंड जो ना, आ आ. आप देख रहे हैं इसमें सख्ती आ रही है, बा आ आ. इसी तरह ता ता, शिद्दत यानी सख्ती आ रही है, सा जा. इसी तरह से अगर आप इसको एग्जाम्पल में पढ़ते हैं तो क्या है, माकूल, मा मा मा. अच्छा, इसमें आप देखें कि जब आप मा कर रहे हैं तो आपका सांस कंटिन्यू नहीं हो रहा. मा, आप देख रहे हैं सांस कंटिन्यू हो रहा है कोई, मा. आप अगर मेरे पीछे बड़े म्यूट ही रखें, मा. आप देखें आप कोई एयर फ्लो फील नहीं करेंगे. अपना हाथ अगर आगे रखें मुंह पे तो अपना आपका जो सांस है वो कंटिन्यू नहीं होगा. मा मा, सांस फौरन टूट जाएगा, लेकिन आवाज में हमजा में सख्ती होगी, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आपको. मा मा कूल, मा कूल. ठीक है. इसी तरह से कौफ तो बा जीम दाल. अब इन 5 लेटर्स जो हैं इनमें सिफ्ते जहर भी पाई जा रही है. जहर आपने पहले पढ़ा था कि जहर किसको कहते हैं. इसमें सिफ्ते जहर भी आप अगर वहां पे भी देखें जहर में तो ये 5 लेटर्स मौजूद हैं. अगर आपने वो लेटर्स देखे हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखें हरूफे मजहूरा, इसमें बा जीम दाल. ठीक है. और इसी तरह से इसमें तो भी है, कौफ भी है, और जी ये क्या बन गया, कौफ तो बा, कुतुब हो गया, जीम और दाल जद. ये 5 लेटर्स हरूफे मजहूरा में भी पाए जा रहे हैं. तो मजहूरा क्या था कि आपने वाज अपना जो सांस है, आपने सांस जो है उसमें कुव्वत आएगी और सांस जारी नहीं रहेगा. ठीक है. आवाज में बुलंदी होगी, हैवी होगी, लेकिन अपना सांस जो है वो ब्रेक करना है, कंटिन्यू नहीं होगा. अब देखें कि यहां पे जो आप पढ़ रहे हैं इसमें सिफ्ते जहर भी है, शिद्दत भी है और कलकला भी है. इसमें 3 क्वालिटी पाई जा रही हैं, 3 क्वालिटीज, जहर, शिद्दा या शिद्दत और कलकला. शिद्दत क्या था,
स्ट्रॉन्गनेस, हैवी और कलकला भी है। ये तीन, आप ये ना सोचेगा एक ही लेटर उसमें तीन क्वालिटीज कैसे आ जाती हैं, एक लेटर में 4 भी क्वालिटीज होती हैं, 5 भी क्वालिटीज होती हैं। अब इनमें इन 5 लेटर्स में यानी कुतुबुज्जद या काफ तो बा जीम दाल में यहाँ पे 3 क्वालिटीज हैं। नंबर 1 इज जहर, नेक्स्ट इज शिद्दा और थर्ड इज कलकला। अब देखें कि हरूफ शिद्दा की जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं फा हमजा फतह काफ अक अक। अब पहले इसमें शिद्दा हम देखते हैं, फिर इसमें कलकला पाएंगे। अगर आप इसको कलकला के बगैर पढ़ते हैं तो क्या होगा, हमजा फतह काफ अक अक, कलकला नहीं कर रहे, बगैर कलकला के पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, सख्ती आ रही है ना काफ में, अक। अब सांस भी टूट रहा है, सांस को आपने कंटिन्यू नहीं रखना, ये इसमें शर्त है। अक अक, अब काफ को पढ़ना मुश्किल था, अक अक अक, लेकिन यानी देखें कि काफ सख्ती से हो रहा है अक, लेकिन हम इसको शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, कलकला भी नहीं कर रहे। अब जब इसको पढ़ना मुश्किल था तो इसकी वजह से इसको रिलीज करना पड़ा, इस पे कलकला करना पड़ा, तो क्या बन गया, अक अक क क क। लेकिन आपका सांस जो है वो कंटिन्यू, आपका एयर फ्लो नहीं है, अक अक। अगर आप एयर फ्लो करते हैं, अपना सांस जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं, तो फिर क्या होगा, अक अक, यानी आपका सांस। लेकिन ऐसा नहीं है, सांस को आपने रोकना है और कलकला भी देना है और शिद्दत भी करनी। पहले शिद्दा क्वालिटी होगी, देन कलकला होगा। शिद्दा क्या था, अक देन कलकला, अक अक क। फर्स्ट शिद्दा अक, देन कलकला क। अज अद अक अक अब ब। लेकिन आपने जब इसको जल्दी पढ़ना है, मिला के पढ़ना है, फिर क्या होगा, अक अज अद अक अब। ठीक है, इसमें 2 क्वालिटीज इस तरह से आ जी, पहले शिद्दा फिर कलकला। अब बाकी रहा काफ और ता। तो काफ और ता में देखें, इसमें पहले सिफ्त क्या है, शिद्दत है, फिर हम्स भी। अगर आप हम्स के लेटर आपने लिखे होंगे तो उसमें क्या था, काफ और ता भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेटर्स को पढ़ते हैं, लेटर्स क्या है, फहस्सहु शख्सुन, फहस्सहु शख्सुन, बाकत बा काफ ता। अब वहां पे काफ और ता दोनों हैं हम्स के लेटर्स में। तो पहले सिर्फ शिद्दा है और उसके बाद हम्स है। शिद्दा कैसे है, आप जब लेटर को पढ़ते हैं, हमजा फतह काफ अक अक। अब काफ को पढ़ना क्या है, अक। जब हम कहते हैं अकबर, अगर कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अक क्या है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हैवी हो रहा है, काफ में स्ट्रॉन्गनेस पाई जा रही है, अकबर। लेकिन अब इसको रिलीज करने के लिए हम्स की सिफ्त लाना जरूरी है। हम्स क्या था, आपने पढ़ा कि लेटर में लाइटनेस होता है, लेटर में वीकनेस होती है। जब आप उसको स्टॉप करते हैं, जब उसको सुकून देते हैं, तो लेटर में क्या होता है, वीकनेस पाई जाती है। तो हम्स की जो क्वालिटी वो क्या थी, लेटर में वीकनेस पाई जाती है और एयर फ्लो जो है, आपका जो सांस है वो क्या कहता है, कंटिन्यू रहता है। तो वो क्या होगा, फिर यहाँ पे दोनों क्वालिटीज आ जाएंगी, सिफ्त शिद्दा भी आ जाएगी। सिफ्त शिद्दा कैसे आएगी, अक अक, सिफ्त फिर हम्स आ जाएगी, अक अक शिद्दा हम्स, अक अक। इसी तरह अत अत क्या है, शिद्दा अत अत, ये साउंड क्या हो जाएगी, हम्स की आ जाएगी, अत अत, इत उत, अक इक उक, अक इक उक, अक इक उक। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं कि आपको इसमें समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं।
اس میں جو 2 کوالٹیز پائی جا رہی ہیں آپ جی یہ تھا ہمارا شدہ کا لیسن. جی آپ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیں. جی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ میرے کو لگتا ہے سب اس کے بھاگتے اندر ہیں. 5 6 صفات ہوتی ہیں ایک لیٹر میں. اس میں 2 ظاہر ہوئی ہیں, باقی کی کیسے ظاہر ہوں گی؟ آنٹی وہ جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے ایک دم تو ایک لیٹر میں ہم ساری سکھا نہیں کر سکتے نا. جیسے جیسے وہ نام آئیں گے نا 10 یہاں پہ متضادہ لازمہ متضادہ میں صفات یعنی جو صفات لازمہ متضادہ میں 10 چیزیں ہیں یعنی 5 کے اپوزٹ ہیں. تو وہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے صفات بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک دم تو ساری کوالٹیز ایک ورڈ میں رکھ دیں گے تو پھر تو وہ تو کھچڑی بن جائے گی آپ سب کے ساتھ.